एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਦਾਰਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ डायरेक्टर हाउसफेड, सरदार अमृतपाल सिंह कैनेडा, सुखजिंदर कौर कैनेडा, सरदार गुरजंट सिंह कैनेडा, रुपिंदर कौर कैनेडा, कमल पंदेर, जैसलीन कैनेडा, मनु कैनेडा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਚਮਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਹਨ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। भी ये जिहड़ा संसार है ये नासवान है। एक उस अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर की जिहड़ी होंद आ वो अविनाशी है, नाश तो रहत है। बाकी जो भी असीं देखते हैं सारा कुछ ही बिनस जान वाला है। जो उपजो सो बिनस है, पर आज गै काल नानक हर गुण गाए ने छाड़ सगल दुनिया। सो धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी जिन्हां दी गुरबाणी दे विचों सानूं सहजे ही ये समझ लगदी आ भी ऐ बंदिया ऐ प्राणी तू एक ना एक दिन इस संसार नूं अलविदा कह जाना। क्योंकि सतगुरु फरमाते ने राणा राव न को रहे रंग ना तुम फकीर, बारी आपो अपनी कोई न बंदा तीर। बारी केवल ये नहीं भी किसी बुजुर्ग की ही होनी है, परिवार दे विच बारी का भाव आ भी साडी सारियां दी ही बारी आनी है। सारियां दी ही बारी के अनुसार इस संसार दे विचों कूच कर जाना। पर जिन्ना समा सानू जिन्ने विश्वास सानू उस अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर वाली बख्शिश है, उन्ना समा असीं जीवन जिहड़ा बढ़िया तरीके दे नाल अपनी जिंदगी जियो के जाइए, ताकि सानू जिहड़ी आ उस मालिक की सच्ची दरगाह वा इहदे विच सानू थां प्राप्त हो जाए।
ਲੱਗਾ ਤੱਕ ਪਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਤੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਬੋਲੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁੱਜੇ ਮੁਕਤ ਅਜਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਲਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਨਿਤਨੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆ ਪਾਲਦਾ ਮਾਂ ਪੋਸਦਾ ਮਾਂ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਗਧ ਅਜਾਨ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੀ ਹੋਈਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੋਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਮੂਰਖ ਦੇ ਬੇਸਮਝ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਬੋਲੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਮੁਕਤ ਅਜਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗੀਆਂ ਲਾ ਕੇ
ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਵਾ, ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸਮਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਏ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਉੱਠ ਪਪੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਨ ਬੁੱਝੇ ਮੁਕਤ ਅਜਾਨ। ਇਹਦੇ ਨਿੱਤ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲਦਾ ਵਾ, ਪੋਸ਼ਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਗਾ। ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਆਨੰਦ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ Thank you.
दुख हंता सुख रास तक विघ्न को लागै जाके बिरावा के अरदास एक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती की सहाय श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कर गुरु नानक ली ध्याए फिर अंगन गुरते अमरदास रामदास होए सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमर श्री हलाए श्री हरिकृष्ण ध्याई है। जिस डिठिया सब गुजारी तेग बहादुर सिमरिया करनन गावे धाई। सब थाई हुनरी सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुनरी सहाय। दसा पातशाहियां दे स्वरूप धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन की दर ध्यान करके बोलो जी। हजूर के पंज प्यारे चार साहिबां दे 40 मुक्ते हठिया जपिया तपिया संता भगतां नाम जपिया वंड के सकिया देख लाई तेग वाही। देख सुन के अंडर कीता तिन्हां दी कमाई का ध्यान करके बोलो जी। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत शीश दिते बंद बंद बताए। खोपड़ियां नवाइयां चरखड़ियां तो चढ़े तन तारियां नाल चराए। सिੱਖੀ किस्सा सवासा नाल निभाई तिन्हां दी कमाई का ध्यान करके बोलो जी। पंजां तख्तां सर्वत गुरद्वारा का ध्यान करके बोलो जी। सर्वत खालसा जी की अरदास सर्वत खालसा जी को वाहिगुरू 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 चित्ता भी चित्ता गंगा सरका सर्व सुखोगे जहाँ जहाँ गुरु खालसा जी साहिब का परिचय रहते देख फतेह। बिगड़ी पैर पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। बासो जी सिखान सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विसा दान गुस्सा दान दाना सरदान नाम दान अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान पिछले गुरु धामां की सेवा संभावना राम खालसा जी बख्शो। बेन माणिया के मान ताणिया के ताण सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी के हजूर अरदास बेनती जोदरी है जे हर जी लिखिया तेहा हम कमाई कलिया में नानका सदैव की जाए दे वाक अनुसार माता प्रीतम कौर मिट्टी सरासर रूपी पूंजी मुश्किल हो के आज के चरण पूजा के समूह परिवार ने राज की धरती बाणी में सहज पाठ प्रेम खिलम करवाए अमृत भोग पाएगा सतगुरु। अंतम अरदासा मुक्त रख के प्राणी बिंद में सतगुरु कथा कीर्तन होए बेअंत भुलां हो जांदियां ने मुआफ करनियां शुद्ध ते स्पष्ट बाणी पढ़ सुनने कीर्तन करने बल बख्शने। दाते आई सिंधु संगत की हाजरी दा प्रमाण कर फल भेटा मौजूद करने कदम कदम संगत का लेखे लाना। बड़ी सुनिबानी सोच के सचखंड सहाय करने पीछे परिवार में सगे संबंधियों भाड़ा मनन का बख्शना। आराम खेड़े तंदुरुस्ती परिवार तंदुरुस्तियां दीन रोगता बख्शनी अंग संग की सहायता करनी देश प्रदेश रक्षा करनी चढ़ती कला करनी विद्या समा परिवार बड़ा सफाना जीत होया और बड़ा समा सतगुरु कृपा करो भागा में भी करो आप ही ने हजूर परिवार बनियो। पंचमुखा प्रसाद की देख सज हाजर अभी भोगलाओ शीतल प्रसाद संगति रसना लायक भाई भाई सके सतनाम श्री वाहिगुरू जी ने जान के सच्चे पातशाह हुक्म बख्शो ध्यान करो हुक्म दी चलन दी सुनत बख्शो सही प्यारी मेरो नाम जी पावे धन नाम नाम चढ़ती कला तेरे नसीब नेक नेक करेगी प्रतिपालो हम बात धारी जीवाय कमल गुण प्रिय
बेअंत स्वामी देवंत लागे ही नहीं है ओ प्राण हमारे गुरु अंत विधि समझाऊ हम अज्ञान तत्व मत चोरी पुण्यात्म निर्दिल खाओ तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम्हारी सजन सुनिधि रातु रख नाराज दयाला नानक हरि तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम्हारी सजन सुनिधि रातु रख नाराज दयाला नानक हरि वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। माता प्रीतम कौर जी ने अंतिम अरदास के 100वें समागम में इकट्ठर हुई गुरु साध संगत जी कट के फतेह बनाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिमें आप कहने भी मौत एक अटल सच्चाई है। आप चल के बंदा जगह के पहुंचता जिथे भाना कोई बरतना होंगे। सो माता प्रीतम कौर बेशक पेट की तकलीफ सी तकलीफ वगैरह जनता लोड़ सी पर मौके की वो तकलीफ नहीं सी जी आप कोई एमरजेंसी होने कोई ऑपरेशन कराना जाना जरूरी सी। सो परिवार वाले सोचा बई कम का टाइम आ चलो ऑपरेशन करवाना करा लेंगे पर समा नेड़े से किसी को पता नहीं सी। सो यह काम बढ़ गया। सो अंतिम समा आ गया। आप जिन्होंने 100वें समागम में जुड़ बैठे हैं उन्होंने उम्र तकरीबन 74-75 साल की सी। दो बेटे उन्होंने सरदार करतपाल सिंह ते सरदार अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह कनेडा में सैट है। एक उन्होंने पोतरा गुरजंट सिंह करतपाल का लड़का वो भी कनेडा में सैट है। करतपाल सिंह को आप जानते हैं सारे इतने जो समाज की लोगों की सेवा कर रहे हैं जाने चेयरमैन ने। सो एक बच्चों को चंगी सेहत चंगा मापा ही दे सकता। बच्चों को चंगी सेहत एक चंगा मापा ही दे सकता। सो उन्होंने अपने बच्चों को चंगी सेहत दी परिवार ने तरक्कियां कीतियां। जे आप उन्होंने सिस्टर च गल करते हैं मैं कहना इन्ना प्यार उन्होंने जिउंदियां भी बिना मुकाबला सरपंच भी बने ते मरण तो बाद असीं नहीं देखा इन्ना प्यार पिंड वालों या इलाके वालों किसी भी चीज़ मिलिया हो जिहड़ा उन्होंने मिलिया। जिवें बाबा जी दसदे सी घर सामभना चुल्हा चौका सामभना गरीब गुरबे लोड़वंद की हर समय सेवा तत्पर रहना। कि मैं कहना भी उन्होंने हिस्से च आया। सो मैं समा ज्यादा ना लवां जिवें आपां कहना पिता का जन्म लिया जाने पूत आपां मापियां दी चाचियां ताइयां दी जां मावां दी जो ज़्यादा सिफत करते हैं मेरा ख्याल है भी उन्होंने छुट्टे करने वाली गल होती है। सो हम भी जिन्हें भी लीडर साहबान इतने हाजिर होने पहुंचे ने मैं बेनती करदा सरदार इकबाल सिंह जी झुंदा वो परिवार का अपना साझा करनगे। कार्य माता प्रीतम कौर जी की अंतिम अरदास में शोभत समूह गुरु साध संगत वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी सारे रिश्तेदार दोस्त मित्र परिवार में स्नेह रखने वाली संगत बहुत बड़ी गिनती माता जी की अंतिम अरदास में शामिल होंगे। सरदार करतपाल सिंह जी सरपंच साहब उनके भरा समूचे परिवार का सुख साझा करनी है। माता पिता का विछोड़ा हर व्यक्ति की दुखदाई होता है। आयु भावें वध हो भावें घट हो क्योंकि माँ का एक ऐसा पवित्र रिश्ता संसार से जितों सानू प्यार ही प्यार मिलता है। कोई गल कलामी कोई कड़कन रिश्ते जो देखने नहीं मिलते
तो अज मां का विछोड़ा होया तो 5 साल उन्होंने अहम भूमिका करी है। और सत्संग की इस गल की तसल्ली भी है कि मां को भी फर्ज ने जो वो बड़े चंगे और सजे ढंग नाल निभाते हैं। जिथे एक चंगा आदर्श परिवार समाज में दिता है जो पंथक सभा में समाज में अपना वडमुला योगदान पा रहे हैं समाज सेवा के रूप में। तो उन्होंने आप ही परिवार में समाज सेवा के खेत्र में जोड़िया और अज उन्होंने गुरबाणी उन्होंने नाम है जो रोशन कर रही है। तो असं महसूस करते हैं एक सफल जीवन बतीत करके अपने मां को कर्जा चंगे और सच्चे ढंग निभा के संसार को सुख रहे। फिर भी मां का विछोड़े का दुख हर व्यक्ति के मन बड़ा दुखदाई सह और वह होता। इस परिवार ने जितने श्रोमणी अकाली दल वडमुली सेवा निभाई है उसके इलाके समाज सेवक के रूप में नेकी ईमानदारी के रूप में बहुत बड़ा स्थान है। ये सारे गुण जो इंसान माता पिता को ਅਸੀਂ ग्रहण करते हैं जिस तरह के संस्कारों साड़ी परवरिश होती है उस तरह की जीवन जाच ਅਸੀਂ सिखते हैं। तो अज परिवार माता जी का नाम रोशन कर रहे हैं और माता जी का बेटा पिंड साढ़े हल्का रसोई तो साढ़े वीर रघुवीर सिंह मोगा प्रधान जी उन्होंने पुआली सन परिवार नाल मेरा बहुत नेड़े का रिश्ता है। कौन साहब नाल विश्व मेला साहिबजादा अपने वालों सारी पार्टी वालों साढ़े हल्के को माता जी को श्रद्धा और सत्कार से करना गुरु महाराज कृपा करना। माता प्रीतम कौर जी अज सानू सारिਆਂ एक संखेप बीमारी तो बाद सानू सारा छड्ड के इस वाले संसार छड्ड के परलोक जा मिलावे क्योंकि एक गल सच्चाई है सृष्टि का एक नियम है जो भी इस सृष्टि के जन्म लैंदा ਉਹਦਾ इस दुनिया तो चले जाना नाश होना ये लगभग तय है। क्योंकि जो भी इस सृष्टि चाहे कोई जीव आ चाहे कोई इंसान आ चाहे कोई भी चीज़ इस सृष्टि के सब तो बड़ी चीज़ चंद सूरज तारे उन्होंने भी साइंसदाना ने इतों तक कह दिता कि 500 अरब साल बाद उन्होंने भी इतों तबाह होकर नष्ट हो जाना है। सो अज माता प्रीतम कौर जी क्योंकि मैं उन्होंने ज़्यादा परसनली कदे नहीं मिलिया पर जब तो बीमार चलते थे मैं उन्होंने पुरते गड्डी के नाल अक्सर फोन से शाम उन्होंने हाल चाल पुछना सी तो उन्होंने बड़ी डिटेल मैं बड़ी डिटेल उन्होंने जीवन बारे मैं जानने का मौका मिला इन्ने निके सवाल से क्योंकि 15-20 साल परिवार के सरपंच ही रही आ। इस समय दौरान जितने उन्होंने हर गरीब की मजलूम की उन्होंने बाह फड़ी उन्होंने तारीफ करने लिए कोई भी शब्दों की कमी हो जाती है। सो इस दुख की घड़ी में उन्होंने परिवार को चले जाना बहुत ही दुखदायक है। मैं अपने वालों अपनी पार्टी वालों उन्होंने शब्द भेंट करता तो परमात्मा के अरदास बेनती करता कि विछड़े दोनों अपने चरणों में निवाज दुख भरे समय सारी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। माता जी जदों विछड़ते गए तो सब तो बड़ा घाटा भी होता है तो दुख भी होता है। सोने का इस सोने का शब्द ही है पर नाम का विछोड़ा सब तो दुखदाई विछोड़ा। मैं बड़ा समा माता जी ने चाह पानी लंगर सवेरे शाम बहुत सेवा माता जी को करवाई है। बड़ा समा इस घर बहुत से उन्होंने शतर छाया के गुजारे है। 20-25 साल को ये परिवार है मेरा एक बहुत ही निका साउ सुहा हर मेरे परिवार और इलाके का जानिया होया परिवार। संस्था
97 ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇਕਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ 97 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। बहुत ही चंगे स्वभाव वाला कोई परिवार नहीं हो या सारे ही माता जी पिता जी आप सारे भी स्वभाव बहुत ही चंगा बड़े काफी हमारा मिल रहा है। आज माता जी के छोटे का दुखदाई समाज बहुत बड़ी तादाद सारे इलाके में बहुत बड़ा आदमी समाज के आदमी सियासी आदमी संत महापुरुष इस शोक सभा चाहे बड़ा बड़ा दुख बनाने आप सारे आए हैं क्योंकि दुख बनया कर जाता है खुशी बनया बच जाती है। मैं बहुता समा ना लेना गया वो परम आत्मा अपना शानदार समूह आपसे लोगों अपने प्रभाव को अपनी बात करो उस लोग की तरह चर्चा से हमारे के बाद क्या करना है परमात्मा नगर करने वास्ते सब भाई भाई वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये ठीक है कि साड़ी गुरु मर्यादा हुक्मना में थोड़ा कौम की समाप्ति होती है और उपरांत असी जान वाले प्राणी उन्होंने परिवार दियाँ समाज प्रति देश के कौम प्रति सेवावां का जिक्र करते हैं साझा करते हैं उन्होंने चंगे गुणों का चर्चा विचार करते हैं। इसलिए ये जरूरी हो जाता है क्योंकि ऐसे भी इंसान साढ़े पासों जाते हैं जिन्होंने एडे बड़े गुण होंगे ने जिंदगी में चंगा ते सच्चा बनाते और इस संसार के शोभा करके जानते वो साढ़े भी कमियां होंगे ने झात मारते हैं अपने जो साडा सामने शीशा असं अपना देखते हैं प्रतिबिंब कि असं कितने खड़े हैं कि साढ़े च गुण है असं सच्चा जीवन जी रहे हैं जीने की अजे बाकी है। तो इस करके चर्चा विचार करते हैं मैं बीबियों को बेनती करूँगा बीबी को गल्ला करता वैसे तो थोड़ा को समा होगा बहुत हो गया अभी जगह करता है नहीं मैं बेनती करना गुस्सा ना करे हो आप गुरु की हजूरी में बैठ गए गुरु को आप समझे एक व्यक्ति एक धर्म ग्रंथ केवल हाजर नाजर गुरु समझने मैं बेनती करा किसी सज्जन ने कहा कि मैं सब तो बड़ा झूठ जरा बोलूँगा वो कहता जी मेरे तो बड़ा कोई झूठ नहीं बोल सकता कहता कि कहता दो औरतें दो बीबियाँ बैठी ने चुप हो गए कहते मैं हो ही नहीं सकता तो चुप नहीं कर सकती कि सवाल दो बीबियाँ बैठे कदे चुप नहीं करते मैं बेनती करूँ भाई बैठे कि थोड़े आप गल कर रहे हैं गुरु की हजूरी में भाई साहब जी कीर्तन करके गए हैं मैं बेनती करा जिस प्रथाएं आप चर्चा विचार करते हैं गल को जिस परिवार की हो रही है मैं तो पहला बढ़िया है विस्तार से परिवार से दसिया गया है क्योंकि सरदार दर्शन सिंह जी स्वर्गवासी इस परिवार के मुखी सर पिंड के सरपंच है और सत्कारयोग बीबी जी का गल चलाना किया जिन्होंने भोटे पर बैठे हैं वो भी सरपंच है और उन्होंने होनहार बेटे सर कृपाल सिंह जी वो भी सरपंच है। मेरे कहने को भाव है कि इनकी सेवा परिवार का आप हर तरह पालना करना पढ़ना अपनी जिम्मेवारी अपनी मजबूरी नहीं कह ली पर समाज की सेवा करनी बड़ी होती है उन्होंने मिलती है जिन्होंने लोग पसंद करते हैं जिन्हों की सेवावां जिन्हों के अक्स समाज में चंगा है जो समाज सधारनी को गल कर सकता है जो लोगों की अगवाई किसी गल कर सकता है तो ये परिवार के हिस्से में आया। तो मैं बेनती करा और विचारो कि ये परिवार इस परिवार का थम होंगे एक पिवट रोल होंगे एक औरत का एक माँ का एक परिवार के जिसे इर्द गिर्द सारा परिवार चलता देखो होंगे। मैं बेनती करा कि बहुत कुछ आप देखते हैं विचारते हैं बहुत कुछ देखते हैं मैं तो गलती हो गई मुख्य सरदार दर्शन से जी साढ़े बहुत बड़े संस्कार में तो शब्द स्वर्ग असली कह गया मैं क्षमा चाह रहा थोड़ी ही है क्योंकि कोलंदर सब को प्रभु करता था
आशीर्वाद कह लिए इस परिवार के सिर से। धरती के दूसरा नाम है माँ। माँ एक प्यार की मूर्त है। माँ एक प्यार का जरा ऐसा साढ़े सामने नक्शा है कि ये दो गल्लां जिहड़ियां असीं मां तो सीखते हैं कि भावें मैं बेनती करा कि संसार हर एक दी तीन मावां ने और तीन मावां की अहमियत साढ़े जीवन की बहुत बड़ी है और अज असीं सारियां नूं सारी बैठे हैं। अज अधोगति मैं एक शब्द वरतांगा उन्हां प्रति हो रही है। सब तो पहला तो वो मां जिहड़ी सानूं जन्म दिंदी है, जननी है साडी, वो मां साडी धरम दी मां जिहदी बदौलत संसार च आए। और दूसरा जिहड़ा सानूं बोलना सिखाउंदी है, जिहनूं कहते हैं मां बोली, वो भी साडी मां बोली नहीं कहने असीं दोनों चीज़ां पंजाबी कहने हैं, साडी मां बोली मां ने सिखाई। और तीसरी मां साडी धरती जिहदी असीं वसदे हैं, जिहड़ी सानूं बसेरा दिंदी है, वो साडी देती है ते जिहड़ी उपजीविका असीं खाने वो खाद खुराक साडे लिए पैदा करके देंदी है, ये भी साडी मां। असीं कई बार सोचण लग जाते हैं कि भारत को मां नूं कहने हैं। भारत माता की जैसा नारा होंदा वो गलत नहीं है, किसी धर्म का नहीं। इस धरती के जितने वाक्या का नाम भारत है, वो धरती को असीं मां कहते सके भारत मां कहते। ये तीन मावां ने साडे जीवन च होंदी है। अज माफ करना तिन्ने मावां की अधोगति हो रही है। अज इस परिवार का जिक्र हो रहा है कि माता जी ढिले रहे, बड़ी सेवा की, परिवार ने बड़ा इलाज कराया। साहिब बाणिया तो फरमान करते हैं कि वैद कहे कौन सी भला दारू मेरे बस, ये तो बस गोपाल की जय भावे मैं खा सकता। कहते परमात्मा की ये बख्शिश है, उनकी दात है, जिन्हें श्वास ने साझे। डॉक्टर साहब बैठा कि मैं इसका मालिक है, हजूर कहते नहीं। भाई साहब भाई प्रकाश ने जिक्र किया कि जड़ी बूटी जे जीवी क्यों मरे धनंतर, दुनिया का सब तो बड़ा वैद धनंतर वैद होया जिहड़ी यूनानी अजकल फार्मेसी में चलदी है, वो वैद वो कदे मरना ही ना, वो कहते वो भी चला गया संसार। तो इस करके मार्ग ने जिन्हें शरीर में भांडे श्वास पाए ने उन्हें भोगे जाने नहीं। मसला तो यह है कि विचार तय करनी है कि केड़ा जीवन जी के गया वो अपने परिवार लिए, समाज लिए, देश लिए, कौम लिए की नहीं कंट्रीब्यूशन है, की करके गया। अज साडे समाज में सत्कारयोग बीबी जी ने अपने परिवार का बच्चों का सब पेंशन जी उन्होंने दूसरा काम कर दी, जो विदेशों में बसते हैं। चंगा परिवार चंगा इस सुहावे मार संसार के वधिया खुशबू और बूटा ला के गए हैं परिवार। तो इस करके ये उन्होंने शोभा बड़ी रही है। असी जीवन खटण वास्ते आने, जीवन कट्टण वास्ते नहीं आने। माफ करना है, खटना की है चंगे गुण तो साहब ने सानू जीवन जीवन की जांच की चीज है, वो खट के जाने खट रहे हैं। बीबी जी की शोभा हो रही है, गुरु के आशीर्वाद का जीवन जी लिया और वो मुताबिक शोभा खटी है। संसार से उसे लेके कुछ नहीं जाना। प्राणी तो आयो लाहा लैन लगा पित को पकड़े, सब मुक्त ही चली रहे। जीवन रूपी रात दिन खत्म हो जानी है, सवेरा होना, चले जाना, चाले पा जाना। इसलिए सुचेत कर देने वाले आओ मैं जो अपने वालों इस परिवार का शरीफ होंगे है, अपने परिवार वालों अपने वालों और सारे सारे श्रोमणी अकाली दल के आगू साहबान बैठे हैं, पूरी संगत को कोलपेट करने वास्ते आए हैं, परिवार को साझा करने वास्ते आए हैं। अज जितनी तादाद की गिनती में आप सारे आए हैं, इस गल तो महसूस होता, एहसास होता, भरी बात जानना कि एडा बड़ा मित्रताई का दायरा उसी है इस परिवार का। एडिया बड़िया सेवावां इन्होंने बड़ी शोभा सरागे। सो मैं सरकार जो भी शब्द सरकार भेंट करता हुआ तुम्हारा जज वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू जी चरणों की आज भी बारे बहुत ही सत्कारयोग साध संगत सारे फतेह बुलाना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। और अज आप साढ़े बहुत सत्कारयोग माता जी प्रीतम कौर जी उन्होंने अंतों अरदास के भी सारे शामिल होने वास्ते पहुंचे हैं। और संगत का बहुत घट है और मैं पहले तो माफी चाहना है, मैं थोड़ा लेट आया। लखोवाल साहब पर जाना सी ते उत्ते थोड़ा प्रोग्राम है सी रश करके ना थोड़ा माफी चाहना लेट हो गया। और मैं सिर्फ फतेह बुला की समाप्ति करनी है। और इतने साढ़े इस कट के बहुत ही सत्कारयोग साढ़े आगू साहबान बैठे ने,
ਸਾਡੇ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਫਮਾਜਰਾ जी, डॉक्टर जसप्रीत जी और जगदेव सिंह जी, बंदेरगढ़ी को साढ़े बहुत सत्कारयोग जगजीत सिंह जी, और मैं जिहदा नाम लवां सामने अडवाल साहब बैठे ने, और सारे ही जो अकाली दल की जो कलीन है इतने पहुंची है, और मैं सारे फतेह बुलाना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मां बारे साढ़े सत्कारयोग संता सिंह मीरपुरी जी बहुत ही विस्तार के नाल दस के गए हैं। मैं अगर बहुत इन्ने रश के इकट्ठ के गर्मी के ज़्यादा समा लवां तो मेरे वास्ते ठीक नहीं लगेगा। मैं सारे को कहना चाहना है वाहिगुरू जी का खालसा। बहुत ही सत्कारयोग बीबी प्रीतम कौर जी की अंतरवास शामिल हुई मुझी संगत जी। राव फतेह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जे हर चीज लिखिया तेरा हुक्म कमाए चले आवे नानक सती उठी जाए तो महाभारत अनुसार बीबी प्रीतम कौर जी सारे नहीं है जाना अभी सारे ने पर बहुत ही परिवार से तरक्की करी है कि उन्होंने उम्र भी सी जान गई बिल्कुल उनकी सेहत भी ठीक सी, चाहे कोरोना की 70 के करीब सी 70 साल से, और उन्होंने सेहत बहुत बढ़िया सी। जिस तो पहले डॉक्टर साहब भी गल करके गए थे तो बहुत ही सियाना से बढ़िया त्यौहार है। जिथे दर्शन सिंह जी उन्होंने पार्टी सरपंच रहे नगर से, उथे बीबी प्रीतम कौर जी आपके सरपंच रहे, उस तो बाद सतपाल सिंह जी सरपंच रहे। लगातार 20 साल इस परिवार अपने सरपंची का अजकल सतपाल सिंह साढ़े लैंड मार्केट बैंक के चेयरमैन की बलावत है, सर्कल जथेदार की बलावत है। सो पंथ परिवार बहुत लंबे समय तो उस परिवार का संबंध है। मेरा अपने परिवार है, भाईचारा साडा वैसे भी नेड़ता करके करे परिवार में बहुत नेड़े का संबंध है। सो अज आप जिथे परिवार की गल करते हैं, इस परिवार ने श्रोमणी अकाली दल की मोहलिया सभा च होकर बहुत पंथ की सेवा की थी। उत्थे बीबी प्रीतम कौर ने कदे भी मैं डॉक्टर साहब पहला गल करके गए बहुत सत्कारयोग साडे संत समाजपुरी की गल करके गए। इस परिवार हमेशा ही लंगर की प्रथा, चाह पानी की प्रथा इस इलाके च रोटी पानी इस घर से होता। ये स्वाणी के सिर पर होता है क्योंकि स्वाणी जो भी उस परिवार ने तरक्की की है उस बहुत बड़ा योगदान बीबी प्रीतम कौर का है। उन्होंने बेटे कम्युनिकल सेक्टर ने तो दूजे इतने श्रोमणी अकाली दल की सेवा कर रहे हैं, नगर की सेवा कर रहे हैं। बहुत बड़ा समाज योगदान है इस परिवार का। इंडिया शीटा कहते मिलती हैं लम्बा सरपंच रहे हो, और अज भी उन्होंने परिवार के बड़ी परमात्मा की कृपा है। सारे फाइनैशियल तौर पर भी, समाज के तौर पर भी, हर तरह धार्मिक क्षेत्र में भी इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। जरूर का वास्ते भी बहुत बड़ा योगदान है। सो बहुत महान शिक्षिता पहुंची हैं इतने, बहुत सत्कारयोग सारे बाबा साहब भी बैठे हैं, सारे हल्के के इंचार्ज ईश्वर धनदेव मान जी, जला साहब चीमा जी, होर सारे सरकार जीता मेहता साहब, होर जी हरजीवन पाल गिल जी, बहुत महान लापरा साहब भी बैठे हैं, गुरप्रीत सिंह लापरा जी जोड़े कि सारे होने मैंबर बनाए हैं, और पोलिटिकल अफेयर कमेटी के श्रोमणी अकाली दल से बहुत पांच सरपंच इस इलाके के सिंह बहुत बड़े महान शिक्षक रणजीत प्रधान ने उन्हें बनाया। श्रोमणी अकाली दल ने मनजीत सिंह की बदली को बहुत महान शिक्षित सरपंच इलाके के सारे करते। सो सारे अपने इस परिवार का दुख मिलाना है, क्योंकि दुख बंटिया घर तक खुशी बंटिया बनती है तो माँ का दिन दुनिया से कुछ दे नहीं सकती। प्रोफेसर मोहन सिंह ने लाइना लिखी है, माँ जी आकर शामा बूटा नहीं नजर ना आवे, रब ने लेके शाह धारी उसको स्वर्ग बनाए। कुल दुनिया के बूटे जल सकते हैं जाते पर बूटा हो सकते हैं जाकर सवाई बार प्रोफेसर मोहन सिंह जी ने। सो अज आप सारे मावां का बहुत बड़ा योगदान है। उत्तर
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਬਖਸ਼ੀ ਸੰਪਤ ਸਾਹ ਦੇ ਗਿਆ ਨਰਕਰ ਪਾਵਨ ਤੇ ਢੇਰ ਸੰਗਤ ਸੀ ਸਿੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਝੰਮਟੋਰਾ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਚਾਰੀਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਲੋ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਿਦਵਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੇਰਾ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਵਾ ਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਤੀਲਾ ਚੁੱਲ੍ਹ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਪਿਆ ਰਹੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਧੀ ਪਤਨੀ ਸੁਚੱਜੀ ਤੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰੇ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਨਾ ਪਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਘਰੇ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਾ ਲਵੇ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਰੱਬ ਰੱਖ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਦਾ 100% ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੁਸ਼ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ 100% ਯੋਗਦਾਨ। ਜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ ਘਰ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਆਖਦੇ ਆ ਜੇ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਸੂਈ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨਾਲ ਘਰ ਉਜਾੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਘਰ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਚਾਹੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਘਰ ਉਜਾੜਦੇ ਉੱਜੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲਦਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਕਿਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ? ਤਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਮਦਰ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ 6 ਸਾਲ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦਾਦੇ ਦੀ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਲਾਜ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ
ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਤੱਕ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੇ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਮਾਂ ਜੀਜਾਬਾਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮਰਾਠਾ ਰਾਜ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਕਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਤੰਭੋਂ ਖੰਭਾਂ ਪਿੱਲਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਤੀਜ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ 2-3 ਵਾਰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੜੀਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸਹਾਰਨ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਕੁਦਮਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 40-45 ਸਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ, ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਕੀਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਸਨਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਰਸਨਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਸਿਨਮਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ ਉਹਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਫਤਿਹ, ਰਸਨਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ 2 ਵਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਕਰਦਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, जो गुरु महाराज ने उसको स्वास्थ्य पूरी जो बख्शी है, जब वो खत्म हो जाए, जो मानना की बख्शिश होती है, जब वो खत्म हो जाए और तीसरा वो स्थान आ जाए। कई बार हम देखते हैं कि किसी इंसान की ऐसे कहाँ से मौत भी होती है, ये कभी सोचा नहीं जा सकता। तो ऐसे इंसान ऐसे आगे ऐसे उसके नाल मौत भी हो सकती है, लेकिन मौत भी क्या जाने क्या जाने क्यों मरेंगे, कैसा मरना पड़े, लेकिन सारे मन तब से कर सकता समझाया गया है। एक जन्म है कि अंत तक जरा सफर है, ये जिंदगी है, इसमें सुखना भी क्या है, इसमें बुझना भी क्या क्या है, इसमें सफेद भी क्या क्या है। सो मैं समझना वो भी सही हर जन्म जो चीज है लेकिन विचार की चिलाई जल के जल ही इसलिए संसार को जो भी बनाया है उसने एक ना एक जान जाना है, कोई दो नहीं। पर ये है कि जान वाला प्राणी जीड़ा है वो संसार ही नहीं है, तो इन्हीं देर जीते गया, वो थोड़ा समय जीते गया, वो 50 साल जीते गया, वो 100 साल जीते गया,
साथ हो गया है वो समाज को की दे के गया उसको समाज दी उसके समाज को की देना है समाज से देना जो सारे सरकार जो पहले प्रीतम होगी उन्होंने बड़ी समाज से इस हल्के का इस नगर का सरपंच वो आप सरपंच इन्हों का बेटा सरपंच तो मैं समझा उन्होंने समाज की सेवा रज के की हर तरीके की इसलिए अपन सारे उन्होंने धन्यवाद कर रहे गुरु महाराज के चरणों में सवाल किया मेरे वीर सरदार भगत सिंह जी कह रहे थे कि माँ की कर सकती है मैं याद कर रहा एक छोटी सी गल करके थोड़ा लाइए मैं अपनी गल कह के थोड़ा जाना एक गल मेरी समझ गई थी मेरे लिए भैन भरा मेरिया बच्चियाँ इतने बैठिया मैं जब किसी ने किसी पारिवारिक फंक्शन से कदे जाना मैं कदे राजनीति की मेरे को स्पीकर बहुत नहीं बाहर नहीं स्पीकर लेकिन किसी का प्रोग्राम क्या बना वो कोई गल करनी है जी समाजी है जी समाज की तो इस करके अपने लीड में क्या जैसा मैंने इस करके चला लिया एक वक्त आया मेरी की कर सकती है एक वक्त आया कि इंग्लैंड का मालिक से इंग्लैंड का राजा से केड़ा वो ना मिल लंबा हकीकत ये है कि इंडियन पार्ट जेड़ा सी उस वेले ने पार्लियामेंट में यहो जी हालात सी मची हुई सी राज में यहो जी गुंडागर्दी मची हुई सी कि उस वेले के राजे को पार्लियामेंट के हाउस में ही मार दिया गया कतल कर दिया और पर बदकिस्मती उन्होंने ये कि उन्होंने को वारिस है वारिस नहीं सी उन्होंने कि जिस वेले जब देखा गया दूर का रिश्ता बन गया दूर का रिश्ता जाके जर्मनी को लगे गया चार वो लगे गया तब से बताया जिसमें तब से बताया गया बदकिस्मती पैरों में खास कर तुलसी कर गई एक सोची के चल कर आई मैं बहुत समय नहीं लेना मैं 2-4 मिनट से अपनी बेटी करके मां की नहीं कर सकती ये कुछ दुनिया में मैं समझना कोई इंसान एक कहे कि मैं मां की देन दे सकता मैं समझता उसको मूर्ख और इंसान अब देखते हैं कि जब बच्चे को मां को हक किया जाता है तो मां दिया अंदर कट के उस बच्चे को हक किया जाता है तो इसलिए मां की देन दे नहीं सकती तो उस में जहाज फर्स्ट आया इंग्लैंड की गति में बैठा लेकिन पता नहीं को पूरी समझता पता नहीं सी को बोली का पता नहीं सी उसको भी कल्चर को पता नहीं सी हो गया दूसरा 4 सेकंड आया उनको भी पता था बोली का करना उनको भी समझता था या पार्लियामेंट के हालात का पता लगा जिस वे तीसरा 4 पढ़ करने वो मां ने क्या क्योंकि मेरा बेटा जरा था कि सही मैंने क्या क्या पढ़ा और वालपूर करके उस वे देश के प्रधानमंत्री ने पहले दूसरे 4 नंबर फोन करके उन्होंने पूरी बोली दान करके वालपूर बोल के प्रधानमंत्री चाहिए दुनिया का सब तो पहला प्रधानमंत्री बनया है वो वालपूर बनया और उसने सारा काम संभाला जिस वे मां ने झारखंड जन्म दिता वो कहने मैं चाहूँ कि मेरा बेटा जड़ा है मेरा बेटा सही मैंने रहा और कहते हैं कि जिस वे बच्चे का जन्म होगा तो बच्चे को मां कहने लगी मेरे भैन मास्टर की बेटी कहना मेरी गल जरूर सुन ले जो मैं कह लगा वो ये कि इस वे पैदा होया मां कहने लगी बेटा ये कि जिस वे स्कूल बच्चा जाया करे क्या करे बेटा ये कि जिस वे स्कूलों वापस आया करे बेटा क्या माँ क्या करे बेटा तू ये कि जिस वे सौन लगा करे उस वे लिखा करे बेटा रूबी के तो भाव यह है कि तू सही मैंने में बादशाह बनी तू ना
वजीक बादशाह ना बनी और उस मां ने रोज हर वेले अपने बच्चे को सिक्ख्या देना नतीजा ये निकलिया कि भावें मेरे उस करना तो उस राजनामा सहमत नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इस गल पर इशारा दिता है कि वो मां जी सी, वो मां की नसीहत का यही नतीजा निकलेगा कि उसने 11 साल ऐसी हुकूमत की थी, ना किसी पार्लियामेंट को पूछा, ना किसी की सलाह। इसलिए माँ जो चाहे बच्चे को कर सकेगा। इसलिए मैं विनती करके कहना चाहूँगा अपने मामा को किसी बुजुर्ग करके पंजाब में हालात जेड़े जो ना मलामत ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਂ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ ਸਾਥਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ बहुत मेरी भी काफ़ी नेड़ता हुई है समय का। तो मैं देखा उनका बहुत बड़ा निका सुभाव और इन्ना मिलनसा आए गए जो भी घर आ गया तो उसको चाह पानी से खाने तो बगैर उन्हें बोलिया नहीं था। पर परमात्मा का हुक्म आ गया, समय ऐसा आया, चंगे तंदुरुस्त हुए, थोड़ी जी बीमारी हुई तो उन्होंने जाना पै गया, बहुत भुख लगे, बहुत ज़्यादा बड़ी कमी, थोड़ी सेहत थी, बहुत ही वधिया से। पर परमात्मा को हुक्म है काम का दुआ सरदार साहब के वाली जाना पैना, उन्हें मौत एक गल सच्चाई है, उन्होंने अकाल तख्त को जाना पाया। मैं समझता कि पिछले परिवार में सरकार दर्शन सिंह जी उन्होंने सरकार माता जी उन्होंने बहुत बढ़िया चंगे संस्कार दिते, अपने बच्चों चंगिया तलीम दित्तियां, समाज माहौल पैदा करके गए ने। और परिवार प्राप्त है श्रोमणी अकाली दल के मूल्य विचार के परिवार है तो श्रोमणी अकाली दल ने परिवार प्रितपाल सिंह जी उन्होंने हल्के जत्था की सेवा लाई है और पीढ़ी के चेयरमैन ने बहुत बड़िया सेवा निभाइया ने। तो माता जी परिवार की घाटा करने सानू समूचे तौर पर सानू समाज से श्रोमणी अकाली दल बहुत बड़ा घाटा पिया। मैं अपने हल्के बनी श्रोमणी अकाली दल पार्टी बनी अपने परिवार बनी हो सरकार माता जी तन शब्द थोड़ा करता परमात्मा के वजह सच्चे पातशाह कृपा कर अपनी रूह करना निवास दे और पिछले परिवार कर सरकार जने दूसरी कड़ी में अलग अलग सियासी पार्टियां तमाम लोग शख्सियत आई ने। सरकार को सारे रिश्ते साहबान दियो, सरकार सारे हल्का निवासी तुम आयो परिवार ने तो बताया घास मिली है, थोड़ा परिवार